Hi दोस्तों, let's come with new topic. In fact, it's a special topic. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एशिया का माहौल काफी गर्म था। भारत ने दिखाया कि जब आप बात अपनी सुरक्षा की होती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 1 एंड 2 के बारे में। क्या हुआ, कैसे हुआ और पाकिस्तान पर इसका असर क्या हुआ। और आखिर में आज कल की सीज फायर की बात, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प भी शामिल हुए। That has meeting has been concluded with both the delegates with ceasefire after 5 p.m. Now before that past previous days में हम लोग ने कुछ जरिए देखे जिसके वजह से हमें लगा कि ये वॉर में भी स्टार्ट होगी, but suddenly the war going to be began on that air strike. Now first I start with the mock drill. 7 को प्लान था मॉक ड्रिल का, that already done, but and on that night the drone attack has been succeeded in the Sialkot. और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। And next day, the Lahore defense system totally neutralized by the Indian Army. And again, that ceasefire. Apart from that, इन सबसे एक चीज के बारे में तो बहुत ही अप्रिशिएट करना पड़ेगा, दैट इज S-400 which is coming from the Russia, which highly appreciated with itna precision and accuracy. I think it's not be ever made by any country. Just thanks to Russia and an Indian army that supported uh, that whole scenario. A special thank to Indian Defense Services. Now one video of S-400. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में डिफाइन करूंगा, हाउ S-400 इज वर्किंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन विद ऑल द थिंग्स, कैसे इनके सिलेंडर्स की सेल्स वगैरह ब्लास्ट होती है ड्यूरिंग द मिसाइल इजेक्शन। Сопровождаю третьим каналом малосотно. По третьему каналу цель уничтожить. Yep, that's right. Now the topic Operation Sindoor 1 and 2. What really happened? Pakistan damage and ceasefire deal with India. ऑपरेशन सिंदूर जो पहले लॉन्च हुआ 7 मई 2025, coordinated with military action by the Indian Armed Force, targeting terrorist infrastructure in Pakistan and POK. और जो ऑपरेशन हुआ, इट्स अ हाईएस्ट लेवल इंडियन गवर्नमेंट की, including प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and all the delegates, with including the notably the lead by the 2 distinguished वुमेन ऑफिसर, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। सो पहले ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। अप्रैल 22, 2025 10:15 पर पहलगाम अटैक हुआ, जिसमें 26
सिविलियंस की जान गई. आफ्टर दैट दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन right now is going on. And April 2023, 2025, Indian government convey the emergency cabinet committee security meeting plans the military response. 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर रात में कंडक्ट हुआ एंड 7 और 8 के बीच में ऑपरेशन 2 which is where the defense system has been utilized of the Pakistan in Lahore. और 9 मई डिप्लोमेटिक एफर्ट इंटेंसिटी ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग हुई with Donald Trump and all the thing. India Pakistan agree the ceasefire broken by international mediators in presence of Donald Trump. और इंडिया ने एक बात कही, any future terror attack will be treated as an act of war. But ठीक है, it's already going on from the terroristan Pakistan. जी, the two distinguished women, Colonel Sophia Qureshi from the Vadodara, जो डेकोरेटेड ऑफिसर हैं फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को एज ए लीड किया था फ्रॉम द इंडियन आर्मी, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी अपना योगदान दिया था. नो अगेन दैट वन मोर विंग कमांडर फोमिका सिंह, एंड ये इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं. सी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड हर एक्सपर्टीज इन एरियल ऑपरेशन में इन्होंने अपना योगदान दिया है. So the leadership is the official briefing that underscore the significant role women play in India defense forces and highlighting the nation commitment to gender inclusivity in the military operation. Okay, चलिए मूव करते हैं पहला टॉपिक दैट ऑपरेशन सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर जो एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया, युद्ध के बिना, लेकिन दुश्मन की कमर तोड़ दी गई है. इसमें स्पेशल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया और एक कम से कम 50 से ज़्यादा मिलिटेंट्स, इनफैक्ट नॉट 50, इज अप्रोक्सीमेटली 160 एज पर द इंफॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड, तो जो कि मारे गए. तो एक मैसेज है, घर में घुस के मारेंगे, दैट इज मे बी दिस सब्जेक्ट टू बी मोर डेडिकेटेड दैट. ये हालत है वहाँ के कुछ कैंप्स की जो आई हैड इंकॉर्पोरेटेड हियर, और ये कुछ पॉइंट्स हैं दे वेयर द अटैक हैज बीन डन नियर द एलओसी, मुर्देक, लाहौर एंड भावलपुर. Now Operation Sindoor 2, aerial retaliation. अगले ही दिन शुरू हुआ ऑपरेशन 2, एक एयर स्ट्राइक कैंपेन जिसमें मिराज 2000 और सुकोई जेट्स ने स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के एसेट्स को टारगेट किया. भारतीय वायुसेना ने 6 मेजर टेरर कैंप्स और 2 आर्मी फील्ड डिपोट्स को निशाना बनाया. रिजल्ट, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप पड़ गई. अनऑफिशियल सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान को 300 करोड़ यूएसडी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ. दिस इज ऑल हैड बीन डन, और इनफैक्ट उस दिन आपका जो डिफेंस सिस्टम था उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, विच इज कम्युनिकेशन और द रेडार सिस्टम इन लाहौर. नो किस किस मिसाइलों से और ड्रोन से अटैक हुआ कि पहला है ड्रोन्स हेरॉन टीवी यूएवी, इजरायली मेड है, लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्निशन ड्रोन है, यूज फॉर सर्विलेंस एंड टारगेटिंग कोऑर्डिनेट ओवर द पीओके एंड पंजाब रीजन. स्विफ्ट यूसीएबी जो इंडिजिनस है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल है, stealth capable drone with precision strike ability. In the sense, stealth is defining that coated with
that paint or coating which does not come under the surveillance or information under the radar. मतलब ये रेडार के उसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कोटिंग इसकी हाईली डिफरेंट मटेरियल्स होती है और डिप्लॉयड इन कोऑर्डिनेशन विद मैन्ड एयरक्राफ्ट। कोऑर्डिनेट्स आपके मैन्ड एयरक्राफ्ट के थ्रू मिल जाती है। दैट इज इट्स सिंपली अ बॉम्बर टाइप ड्रोन। चलिए मिसाइल की बात करते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रेंज 450 किलोमीटर, यूज डीप स्ट्राइक इन मुरिदेक लश्कर हेडक्वार्टर, पिन पॉइंट स्ट्राइक विद हाई स्पीड एक्यूरेसी। प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो solid fuel, in the sense solid fuel it's generally used in satellite or spacecraft, that is used in that one। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये फोर्ट इन द बंकर, जो बंकरों में छुपे रहते हैं उनको मारने के लिए यूज हुई है। नाग एंटी टैंक मिसाइल एटीजीएम, फायर फॉरगेट एंड यूज अ क्लियरिंग फॉरवर्ड लॉन्च पैड इन पीओके हिल्स। ये पीओके हिल्स में जितने भी लॉन्च पैड थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब हाँ बात करते हैं हाउ मच वाज पाकिस्तान अफेक्टेड। वैसे तो देखा जाए इम्पैक्ट तो उसको बहुत सारे हुए हैं बट ही इज नॉट कंफर्मिंग। ऑब्वियसली बात है कि अपनी चीज़ों को छुपाने में पाकिस्तान तो सबसे बड़ा इंसान एक कंट्री है जो कितना भी बर्बाद हो जाए लेकिन शो ऑफ तो इतना करेगा कि आई एम द लेजेंड। अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट में इंटरनल रिपोर्ट्स फ्रॉम द पाकिस्तान से heavy losses, 120 casualties including trained militants and soldiers। 3 मेजर कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसका फोटोज मैंने इंकॉर्पोरेट किया है बिफोर एंड आफ्टर दैट। कम्युनिकेशन टावर डिस्ट्रॉय हुए, सर्विलेंस पोस्ट डैमेज हुए हैं, पैनिक बॉर्डर विलेजेस लेड टू द मास सिविलियंस इवैक्यूएशंस, मतलब निकाले जा रहे हैं that one। और पाकिस्तान में इनका रिएक्शन था कि सिंपल है, पाकिस्तान ने इनिशियली डिनाई करना चालू कर दिया है मगर इंटरनल मीडिया रिपोर्ट और सैटेलाइट फुटेज ने सच सामने दिखा दिया है। वहां पर आर्मी हॉस्पिटल फुल थे और बॉर्डर के पास पैनिक मोड में इवैक्यूएशन शुरू हो गया था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने फाइटर जेट को सिविलियन एरिया से हटा दिया। अब ग्लोबल रिएक्शन क्या था? अब इसमें ग्लोबल प्रेशर तो बढ़ने ही लगा और यूनाइटेड नेशन ने भी कंसर्न दिखाया। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बात की और मेडिटेशन का ऑफर दिया। ट्रंप की प्रेजेंस में टेम्पररी एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, म्यूचुअली एग्री हुए कि अभी के लिए फायरिंग बंद रहेगी एंड भारत ने अपने पोजीशन क्लियर कर दिए। पीएम और डिफेंस मिनिस्टर ने जॉइंटली अनाउंस किया अगर फ्यूचर में कोई भी टेरर एक्टिविटीज इंडिया सॉइल पे होती है यूजेस डायरेक्ट वॉर का एक्ट माना जाएगा। इट्स कंसीडर डायरेक्ट वॉर ऑफ एक्ट। हम जवाब देने में देर नहीं करेंगे। यह एक क्लियर मैसेज था, नो मोर पेशेंस ओनली एक्शंस। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया चैप्टर लिखा है भारत के मिलिट्री डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल पर बड़ा नुकसान हुआ है। सीज फायर आया है लेकिन इस बार शर्तें में हमने तय की है कि अगर आगे क्या होगा वो समय बताएगा, पर एक बात तो क्लियर है, भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। सो दैट इज द रिएक्शन। This is overview of that one। India made it very clear any future terror attack from the Pakistan-based actors will be treated as an act of war। This is a new doctrine, clearly drawing a red line। It is single zero tolerance to terrorism and cross-border proxy warfare। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको ऑपरेशन सिंदूर 3
ऑपरेशन सिंदूर 3 चाहेंगे अगर पाकिस्तान फिर कुछ करे। इनफैक्ट कर ही रहा है, दैट इज ऑलरेडी दे हैड violated the ceasefire yesterday night. In fact, the 5 p.m. we are not going to be war again, but again they violating in drone continuous drone attack on that one. तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आगे भी इस रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा और मे बी that all technical parts which I did not covered in this one, I will upload in the next videos with new description and the definitions. So I think thank you. Bye. Jai Hind.